Hi, good evening, everyone. In this video, we are going to discuss the plan for the next 110 days. I have gotten a couple of messages. बच्चे बोल रहे हैं कि सर काफ़ी काम हुआ नहीं है काफ़ी टाइम से we are trying to prepare but we are not able to have a plan, and there are a lot of kids who are just not able to balance school with the preparation. And since now CLAT is coming in the next couple of months, next three and a half months, for that we need a concrete plan if you want to crack this exam. Okay, so we will be basically dealing about the plan for, let's say, a person who is just starting the preparation. हम एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं जिसने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, फ्रेश, नथिंग हैज़ बीन अचीव्ड, थोड़ा सा इधर उधर डाइस ही चल रहे हैं, ठीक है, फोकस नहीं आ रहा, गाइडेंस नहीं मिल रही, रिसोर्सेज नहीं समझ आ रहे हैं, कैसे जीके कैसे कवर कर रहे हैं, लीगल में क्या करना है, आरसीसीआर कैसे इम्प्रूव करना है, सो थिंग्स लाइक दिस. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्स a person to increase their comprehension and vocabulary and reading speed specifically. So if you are not in a category where your reading speed is not very good or your comprehension is very bad, you'll have to put some extra efforts to that also. Okay, so you will have more work on your hand, आपके पास काम ज़्यादा करने को होगा. Okay, so let me tell you a couple of things first. Let's just get ahead of ourselves and just start with the plan. Okay, now as we know, our entire curriculum is divided into 4 subjects. If we take out maths completely, which is 10 to 12 marks, maths की मैं अलग से बात करूँगा, but majority we have 4 sections we have to deal with. GK and legal almost carry the equal weightage, and so does RC and CR, right? तो मेजर चंक जो हमारा पूरे प्रिपरेशन का कंसिस्टेंट बेसिस पे जाएगा वो इन चारों सेक्शन पे जाएगा. मैथ्स विल बी हाफ आवर 1 hour थ्रू प्रैक्टिस, राइट, थ्रू मॉक्स. यू विल बी कवरिंग मैथ्स पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन उन लोगों को देना पड़ेगा जिनका मैथ्स काफ़ी ज़्यादा वीक है. दे आर नॉट इवन एबल टू सॉल्व इट. अटेम्प्ट करने की बात नहीं है, देर आर सम पीपल हु कैन सॉल्व इट, बट इट्स जस्ट दैट दे आर स्लो, तो दे आर नॉट एबल टू रीच टू दैट मैथ पोर्शन. You have to focus on RCCR, you have to focus on speed reading, all of that. मैथ्स अगर आपसे बन जाता है तो, अगर किसी से मैथ्स बन ही नहीं रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इवन आफ्टर रीचिंग टू द सेक्शन, देन दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? सो विल टॉक अबाउट दैट, बट लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन ईच ऑफ द सेक्शंस. नाउ लीगल का आई हैव ऑल बीन टेलिंग यू कि पिछले 2 साल से स्टैटिक लीगल बिल्कुल पेपर से गायब हो चुकी है. You have to focus on a lot of current legal. In fact, last year and the previous year papers entirely were based around current legal. There were not a single question which was, you can say, properly purely a static legal passage. Torts, crimes, contracts, consti, they have not been asking for the past 2 years, which means the weightage increases in favor of the current legal and people who are following current legal. And you have to follow 3 types of basic sources. One is judgments of the Supreme Court, summaries of the judgment, because if you might remember, the last year we had a Supreme Court judgment over succession rights of an illegitimate child, right? So we need to cover that area. For that, please start taking note, because this is where I start giving you plan. Okay, the first thing you need to do, number 1, is SCO cases. This is the website called Supreme Court Observer. Here you have to go on cases. Okay, click on status, click on decided. You will get all the decided cases, right? And at least we will go back till last year July. The reason I tell you July, because this particular judgment, LG versus NCT of Delhi, becomes very very important. इम्यूनिटी अगेंस्ट अरेस्ट आर्टिकल 20 से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. CBI, ED हैज़ कम इन न्यूज़ अ लॉट, स्पेशली PMLA के कॉन्टेक्स्ट में. डिस्क्वालिफिकेशन पे अभी तक कुछ पूछा नहीं गया है. डिफेक्शन इज़ अ वेरी फेवरेट टॉपिक विच कैन बी आस्क्ड. एंड सो फॉर बेसिकली दीज आर द जजमेंट्स विच हैव नॉट बीन कवर्ड बाय द प्रीवियस साइकिल ऑफ द एग्जाम.
तो ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा. देयर आर कपल ऑफ judgments which are very very advanced, irrelevant. For example, you can skip those, like you can, for example, vacations of stay orders you can skip. You can go ahead and skip where's the other one, nature of royalty paid by mine leaseholders, right? But other than that, everything else is related. It's all expected from a aspirant who is preparing for CLAT. एंड आप उसको पढ़ना कैसे, आप एग्जाम्पल लिखो इसका. जैसे दिस इज वन ऑफ द रीसेंट जजमेंट, 7 बेंच जजमेंट. दिस इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दाविंदर सिंह. वेरी इंपॉर्टेंट सब कैटेगराइजेशन रिजर्वेशन जजमेंट. ओके, एंड हैज़ ओवर रूल्ड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ 5 जज बेंच. सो बहुत काम की चीज़ है ये. इसको आप पहले क्लिक करो, रीड द होम पेज. दिस विल गिव यू कंटेक्स्ट, की इशूज़ आपको बताएगा जजमेंट के. ठीक है, इट विल गिव यू द बैकग्राउंड हाउ दिस जजमेंट केम इन टू कोर्ट. ओके, after this entire background, you will come to reports where you will find something called as judgment summary. Click on this judgment summary and read this entire judgment summary where every issue of the judgment has been dealt with in detail. ये आपका जो लैंग्वेज है, ये आपको लीगल रीजनिंग के पैसेज से लैंग्वेज आपको काफ़ी सिमिलरली लगेगी यहाँ पर. सो दैट्स फर्स्ट सोर्स. ओके, इफ़ यू गो बैक टू नाउ पॉइंट, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू. अब आपको ये कब करना है, हर दिन एक कर लो बस. हर दिन एक जजमेंट का उठाकर आप ये कर लो. ठीक है, दिस इज़ नॉट मोर देन 30 जजमेंट्स. यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो दिस इज़ नॉट मोर देन 30 जजमेंट्स. सो एक महीने में ये ख़त्म हो जाएगा आपका. ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस. या, so this is the first source. Second source, इसी वेबसाइट से go to analysis tab. Can you see this analysis tab? Click on this analysis tab and यहाँ पर आपको articles मिलेंगे. So basically legal में 3 तरीके के passages आ रहे हैं. First is judgment summary, second is articles on specific issues like online defamation, last year it came, JJ Act, last year it came, right? So that article format you need to cover from these kind of articles. The good thing about SEO is you can literally search what topic article you need. For example, if I'm looking for the article on, let's say, remission, right? So I'll type remission, I'll get the remission articles, right? So this is a very very helpful tool. ये 2 आपको सोर्सेस लीगल के लिए बताया है मैंने. ठीक है, अब करना क्या है इसमें, आपको पहले तो दोनों केसेस मैं बोलूँगा यू ऑल्टरनेट इफ़ यू कैन, बट एनालिसिस आर्टिकल्स आपको लीगल आर्टिकल्स रोज़ एक पढ़ने चाहिए. एक कोई भी उठा के पढ़ना चाहिए बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट सोर्स. लेट्स कम टू द सेकेंड सोर्स विच इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड prsindia.org. ये मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बताया है कि इस वेबसाइट को यूज़ करना है. इससे 2 चीज़ें करनी है. सो यहाँ पर यू कैन सी द मेन्यू कॉल्ड बिल्स एंड एक्ट्स. इसके अंदर बिल्स पार्लियामेंट पे जाओ and these are the lists of bills which have been introduced in the parliament which are also making a lot of news. ठीक है, a lot of students I had told this, ठीक है, कि ये जो पहले के bills हैं इसको ख़त्म करो. it's the session coming, right? and after the session starts, after the monsoon session I'm talking about, it will again increase. A lot of bills will be introduced and see 3, 8, 9, 10, 11, 12 bills have been already introduced. So इसको भी आपको कम से कम पीछे तक जाकर मैं आपको बताता हूँ why the reason. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लास्ट ईयर आया था. प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल भी लास्ट ईयर आया था. तो कम से कम हमें यहाँ से स्टार्ट करके पीछे ऊपर तक पूरा कर लेना चाहिए. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो 30 to 35. एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत केयरफुली सुनिएगा, राइट? The new 3 criminal laws, right? This ones, BNS, BNSS, BSA, overview of criminal law reforms. These were withdrawn, if you can see here, right hand side पे. तो इसको नहीं पढ़ना है. इसके जगह आपको क्या पढ़ना है, इसके ऊपर सेकेंड वर्जन हैं इसके सबके. सेकेंड वर्जन पढ़ने हैं. कैसे पढ़ना है इसको, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड रीड द इंटायर थिंग. अब ये BNS बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, तो ये थोड़ा लेंदी है. बट जनरली इफ़ यू लुक फॉर अ रैंडम law, for example, let's say water amendment bill, it's not very long. That's it. Okay, so this is the third source for legal. You have 1 SEO case, 2 SEO analysis, 3
these. Okay. Fourth, go to same page, ये same page पे दूसरा सोर्स है. Go to policy, click on monthly policy reviews, and यहाँ पर आपको पूरे मंथ्स के सारे ईयर्स के जिनके भी चाहिए आपको मंथली पॉलिसी रिव्यू मिलेंगे. आई विल रिकमेंड स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर एटलीस्ट. क्लिक ऑन दिसंबर 2023, अप्लाई पे करो. यहाँ दिसंबर 2023 की डॉक्यूमेंट आ जाएगी. यू क्लिक ऑन दिस इज अ 20 पेज डॉक्यूमेंट. ये बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू वॉट यूजली देयर साइजेज आर, बिकॉज दिस वॉज विंटर सेशन. तो इसमें काफ़ी कुछ है. इसको ना एक बार पूरा पढ़ जाओ. इसमें से लीगल चीज़ें निकाल लेना. ठीक है. रेपो रेट मेरे को नहीं, रेपो रेट पे कमेंट्री नहीं पढ़नी मेरे को हर मंथ. ओके, सो आई कैन एक्सक्लूड दैट. बट देखो यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. Bill to amend the Advocates Act, right? Laws. Parliament passes bill reserving seats for women in Puducherry legislature. State है, you can read it, you can ignore it, but union वाले सारे पढ़ लेना. देखो 3 criminal laws वाले. ठीक है, ये फर्स्ट वर्जन जब पास हुए थे तो उसकी समरी है. ये करंट अकाउंट डेफिसिट ये सब नहीं पढ़ना. लॉज पे फोकस करो, लॉज पे बहुत फोकस करो. और ये पूरा आपका एक मंथ का राउंड अप होगा. पूरा मंथ आपका इसका लीगल कवर हो जाएगा. इसमें पॉलिसीज़ भी आती हैं, तो जीके में जो आपके स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो भी कवर हो जाएंगे इससे. ठीक है. देखो जैसे मैं बोल रहा था, दिसंबर इज़ ह्यूज, दिसंबर इज़ ह्यूमंगस. जनरली इतना बड़ा नहीं होता. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. मार्च अप्रैल में कोई भी उठा लेते हैं. ठीक है. चलो लेट मी पिकअप जून ओनली, मोस्ट रिसेंट. जुलाई में तो आपको फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अगेन बजट. दिस इज़ 8 पेज, 8 पेज भी नहीं है ये. दिस इज़ एक्चुअली इतना 8 पेज. ये एनेक्स्चर है, एनेक्स्चर नहीं पढ़ना आपको. यहाँ पर बस कैबिनेट के सारे पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं. ओके, 8 पेज ऑन एन एवरेज. लेट मी शो यू मे इज़ ऑल्सो, मे इज़ इवन शॉर्टर. मे में तो आई थिंक मुश्किल से 6-7 पेजेस है. 5 पेज. सी दिस, शुरू होते ख़त्म. ओके, एंड 5 पेज. ये फर्स्ट पेज इज कचरा, लास्ट का हाफ पेज इज कचरा. इट्स 3.5 पेज. 1 page per day. Just listen to this, okay? 1 page per day. This 1 judgment SEO से per day, 1 analysis से एक article per day, and 1 bills parliaments SEO MPR the PRS website per day. ये 4 चीज़ें पर डे कर लो. अगर आपको जल्दी ख़त्म करना है, अगर आपको जल्दबाजी है, इफ़ यू कैन स्पेंड द टाइम. इफ़ यू डोंट हैव द टाइम, 1 पेज आपको MPR हर दिन करना है. उसके साथ बाकी की जो 3 सोर्सेज मैंने बताया आपको, विच इज़ बिल्स पार्लियामेंट, सो SEO के केसेस की समरी, और SEO से एनालिसिस आर्टिकल्स. ऑल्टरनेट कर करके आप पढ़ लो, लेकिन ये 1 पेज ज़रूर पढ़ना. बिकॉज अगर आप अभी तक का देखोगे दिसंबर से जुलाई, on an average, even if you take 10 pages, it's 80 pages. So you need to at least cover 1 page a day. It's less than 80 if I'll be very honest with you. It will be 65-70. बट 1 पेज मिनिमम करना पड़ेगा. ज़्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है. बट जब लीगल पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, जैसे मैंने इस MPR में से ड्राफ्ट एक्सप्लोजिव बिल पढ़ा, तो आई जस्ट राइट दिस हेडिंग ऑन अ लिस्ट, ऑन अ पेज. वाई? आई नीड टू नो वॉट ऑल लॉज आई हैव बिन रीडिंग. नो नोट्स, जस्ट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स. तो मैं अब मान लो MPR में आज मैंने 2 पेज पढ़े, उस 2 पेज में मैंने कौन कौन से लॉज पढ़े वो नोट डाउन कर लो फुल, और ब्रैकेट में लिख लो सोर्स, कहाँ से पढ़ा, MPR में. सो दैट इफ़ यू वांट टू गो बैक एंड रिवाइज, यू कैन डू दैट यूजिंग दैट लिस्ट. ओके, नोट्स नहीं बनाने, बहुत हेक्टिक हो जाएगा. नोट्स बिल्कुल मत बनाना. वो लिस्ट मेंटेन करना ज़रूरी है. वॉट एवर यू आर रीडिंग, जस्ट उसकी हेडिंग कहीं लिख लो. एक जगह पर एक लिस्ट होनी चाहिए, सो दैट बिफोर एग्जाम्स इट्स ईजियर फॉर यू टू रिवाइज, एंड इट विल ऑल्सो गिव यू कॉन्फिडेंस. राइट? मेमोरी बेस्ड एग्जाम नहीं है. ओके, लीगल सेक्शन मेमोरी बेस्ड एग्जाम नहीं है क्लैट का. तो बस वहाँ आपको पढ़ के एक बार चीज़ें समझनी है, आपको रटना कुछ नहीं है. नो नीड टू मेक नोट्स. ओके, एंड दैट इज़ वॉट यू विल डू फॉर लीगल स्टार्टिंग टुमारो. दिस इज द प्लान स्टार्टिंग टुमारो. ओके, सेकेंड, जीके में अब आपको अपने पूरे प्रेप को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच नीडेड टू बी कवर्ड बिफोर. Okay, and there's a lot of things which you have to cover on a daily basis. Okay, now given the fact I'm a legal edge faculty, I will recommend a couple of legal edge sources, but अगर आपके पास कोई substitute है तो आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. now आपका GK जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा. एक होगा बैकलॉग, एक होगा करंट. ठीक है, तो लीगल के लिए 2 स्लॉट्स आप बना लो.
1 घंटे के, 2 घंटे के, 1.5 घंटे के, वॉट एवर योर कैपेसिटी, वॉट एवर योर श्रद्धा। ओके, नाउ बैकलॉग वाले स्लॉट में आपको क्या करना है पहले वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। पहले कोई अच्छा सा मैराथन उठा लो, मंथली राउंड अप उठा लो किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है, या किसी भी इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स पढ़े हैं आपके पास वो उठा लो, ठीक है, या कोई मैगज़ीन फॉलो कर रहे हो वो उठा लो। ये तीनों में से एक चीज़ उठा लो, ठीक है। जैसे अगर आप लोग मोस्टली कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे होगे या कहीं ना कहीं क्लासेस ले रहे होगे, तो फर्स्ट पे उसको उठा लो, दैट विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। लेट से नहीं ले रहे, लेट से खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले आप इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड उठा सकते हो, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड, व्हेन यू टाइप एक्सप्लेन्ड इंडियन एक्सप्रेस, उसका एक पूरा पेज आएगा, यहाँ पर एक्सप्लेन पे क्लिक करोगे ना, ये सारे एक एक बहुत अच्छे अच्छे आपको डेप्थ में टॉपिक्स का आइडिया देंगे। यू कैन पिक दिस, ठीक है, यू हैव टू डू दिस एवरी डे। बैकलॉग के लिए भी मैं नहीं बोलूँगा, बैकलॉग के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बैकलॉग के लिए आपको क्या करना है, जो पहली चीज़ मैं बताऊँगा, दैट इज़ टू पिक एनी मैगजीन। I'm pretty sure all of you are covering someone is covering Clad Post, someone is covering Clad Express, जो भी है रिवर्स में स्टार्ट करो, जैसे जुलाई से स्टार्ट करो, फिर जून जाओ, फिर मई जाओ, ठीक है, पीछे जाओ, और पहले इन मैगजीन्स को ख़त्म करो, टॉपिक्स निकालो, ठीक है। ख़त्म कैसे करना है, नोट्स बनाते रहना है साथ में। जीके जब भी पढ़ो बिना नोट्स के मत पढ़ना, बिकॉज यू कैन नॉट हैव ऑल दिस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज आपके बिखरे हुए हैं कई इधर उधर जगह है, एंड यू नीड टू रिवाइज जस्ट बिफोर द एग्जाम। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले ना केवल रिविजन चलेगा, तो रिविजन के लिए आपके पास एक ना कॉन्क्रीट सोर्सेज चाहिए। तो लास्ट ईयर जब मैंने मैग्ना कार्टा भी पब्लिश की थी, दैट वॉज सपोज टू बी दैट सोर्स, 500 पेज था और बच्चे उसको कई बार करके चले गए थे। दैट इज़ वाई यू नीड समथिंग कॉन्क्रीट, यू नीड सम नोट्स, ओके। Now I'm not sure whether I'm publishing it this year or not. जो भी होगा I'll let you know, but most likely this year might not be possible. But आपको अपने नोट्स खुद से बनाते रहना है, ठीक है। अब पहला सोर्स कोई उठा लो, जैसे मैं लीगल एज के बच्चों को, बिकॉज आई एम रियली सॉरी आई हैव टू गिव द एग्जाम्पल बिकॉज आई एम एन फैकल्टी ऑफ देयर, तो मैं बच्चों को जनरली यही सोर्सेज रेफर करते देखता हूँ। देयर इज़ अ क्विज लीगल एज पुट्स, इट्स कॉल्ड जीके फिएस्टा, दैट्स अ वीकली क्विज। उनके 15-20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वीक के, ठीक है। अभी तक आई थिंक 18-19 फिएस्टाज हुए हैं, आप 15 टॉपिक्स भी ले लो, 10 टॉपिक्स ले लो, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स टेंड टू रिपीट, तो 100 टॉपिक्स आर देयर। दैट इज़ फर्स्ट। ये हम बैकलॉग स्लॉट की बात कर रहे हैं। बैकलॉग स्लॉट में पहला सोर्स, ये सब लिखना है जो मैं चीज़ें इम्फोसाइज कर रहा हूँ। पहला सोर्स इज जीके फिएस्टा, स्टार्ट कवरिंग जीके फिएस्टा। उनके ब्रैकेट में सोर्सेज दिए हैं कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आप कवर कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहे हैं सोर्स तो यूट्यूब पे जाओ, उस टॉपिक को डालो और वहाँ से कवर कर लो, कोई भी वीडियो आएगा तो। दूसरा सोर्स, इंडियन एक्सप्रेस पे एक्सप्लेन्ड आर्टिकल खोजिए उसका, या कोई द हिंदू का आर्टिकल खोजिए उस टॉपिक का। तीसरा सोर्स, यूपीएससी के वेबसाइट्स, लाइक जो इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स आते हैं, यू कैन टाइप द टॉपिक, टाइप यूपीएससी अलॉन्ग साइड विथ इट, बट प्लीज़ बी वेयर कि यूपीएससी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सब्जेक्टिव लंबे लंबे उसमें एक्सप्लेनेशन होंगे, वो मत उठाना। आपको फैक्टॉइड्स उठाने हैं। फैक्टॉइड्स मतलब जिनसे क्वेश्चन बनता है क्लैट में, एमसीक्यू का टॉपिक है वो, एमसीक्यू लॉन्ग लेंथ आंसर्स का नहीं, ओके। सो फैक्टॉइड्स देखो और उनको एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। लेट्स से आई स्टार्टेड विद द टॉपिक इजराइल पैलेस्टीन, मेरा पहला सोर्स है, मान लो इजराइल पैलेस्टीन करने का सम वीडियो, ओके, और आई फाउंड एन एक्सप्लेन्ड आर्टिकल, आई डिड इजराइल पैलेस्टीन। अब देखो, हमेशा ना जब भी नोट्स बनाओ 2-3 तरीके से हमेशा सोचना है आपको। एक टॉपिक अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसकी हिस्ट्री, ठीक है, उसका पॉलिटिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उसका आईआर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, उसकी हिस्ट्री हो गई, उसकी जोग्राफी हो गई, ओके, लोकेशन की। तो इफ़ आई स्टार्ट विद इजराइल पैलेस्टीन, आई विल फर्स्ट लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इजराइल, हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टीन। देन मैं पॉलिटिकल रिलेशंस देखूंगा, पार्लियामेंट का नाम क्या है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये लोग कौन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है या नहीं है, ठीक है, ये हेड कौन करता है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। देन विल लुक द जोग्राफी, अच्छा, विच आर द कंट्रीज सराउंडिंग दीज कंट्रीज, व्हाट वाटर बॉडीज आर देयर, व्हाट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आर देयर, राइट। एंड देन वी गो टू द करंट इशू, इकोनॉमी भी आप थोड़ा देख लो। देन वी गो टू द करंट इशू। करंट इशू में जैसे आईआर के लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स बताता हूँ आपको, इट्स कॉल्ड CFR, काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस। इस पे जो है ना, इस पर आर्टिकल्स भी काफ़ी सारे अच्छे आते हैं, तो आप इससे आईआर के आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो।
बट इसका जो सबसे अच्छा सोर्स मैं बताता हूँ, दैट्स अ फीचर, इट्स कॉल्ड आई थिंक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर. लेट मी जस्ट सर्च इट. या ये इन्हीं का है. आप इसको क्लिक करके देखो, इट विल ओपन अ मैप, वर्ल्ड मैप खोल देगा आपके लिए. और यहाँ पर जितने भी वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उन सब का रेफरेंस है. सो लेट्स से वी वांट टू रीड अबाउट टर्की एंड आर्म्ड कुर्दिश ग्रुप्स के कॉन्फ्लिक्ट. इस पर क्लिक करो, पूरी की पूरी हिस्ट्री, नगोर्नो कारबाख पूरी की पूरी हिस्ट्री. यहाँ गए, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, लेबनन, राइट, सिविल कॉन्फ्लिक्ट इन लिबिया, दिस इज लास्ट ईयर, सूडान है ना, कॉन्फ्लिक्ट इन इथियोपिया, यहाँ यमन आएगा, वॉर इन यमन, राइट. दिस विल बी इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, दिस इज इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, राइट. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, सिविल वॉर इन म्यांमार, दिस ऑल विल कम. ओके, आई थॉट बांग्लादेश भी अपडेट हुआ होगा, अभी हुआ नहीं है. दिस इज वॉर इन यूक्रेन. सो यू क्लिक ऑन दिस एंड यू विल सी कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड दिया है, पूरी हिस्ट्री दी है. दीज ऑरेंज आइकन्स, जैसे आपको मिन्स्क अकॉर्ड पढ़ना है तो उस पर क्लिक कर दो, यू विल गेट एन आर्टिकल ऑन मिन्स्क अकॉर्ड. ओके, एंड पूरी हिस्ट्री के बाद करंट स्टेटस भी आपको यहाँ लास्ट में इसमें ये बता देते हैं, रीसेंट डेवलपमेंट, सी दिस. ओके, सो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ रेफरेंस. आप और आर्टिकल्स पढ़ सकते हो. रशिया यूक्रेन वॉर, न्यूयॉर्क टाइम्स का भी ऊपर आर्टिकल है. सो या दिस इज गुड सोर्स फॉर IR. ओके, अब मैंने इसको नोट्स बना लिया. अब नोट्स बनाते समय नोट्स कैसे बनाने ये सुन लो. लेट्स से लेट मी जस्ट टेक अ पेज. लेट्स से या दिस इज माय पेज जिस पे मैं नोट्स बना रहा हूँ. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इतना पार्ट राइट हैंड साइड पे आपको ब्लैंक छोड़ना है, एक मार्जिन क्रिएट कर रखना है. क्यों? क्योंकि आप नोट्स यहाँ बनाना स्टार्ट करोगे. आपने एक सोर्स से इजराइल पैलेस्टीन के नोट्स बना लिए. अब आपको दूसरे सोर्स में हो सकता है इजराइल पैलेस्टीन का कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए. यू विल नॉट राइट इट समवेयर एल्स, यू विल राइट इट ऑन द मार्जिन यू हैव लेफ्ट ऑन द साइड ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन नोट्स, सो दैट एक टॉपिक के नोट्स एक जगह रहें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड दैट इज़ वाई आई इनकरेज कि सबको नोट्स जो है हैंड रिटन बनाइए. अगर आपको टाइपिंग का ये है, इफ़ यू कैन मेक नोट्स फास्ट ऑन डिजिटल मोड, and if you prefer digital mode other than writing, you write slow or you don't prefer writing a lot, डिजिटल पे बना लो. बट याद रखना कि जब डिजिटल पे आपके फाइनल नोट्स बन जाए उसको प्रिंट करा लेना, बिकॉज रिविजन के टाइम पे हाथ में वो अगर आपके पास सोर्स रहेगा ना, यू कैन यूज़ हाईलाइटर, यू कैन मेक नोट्स, इट विल हेल्प यू टू रिवाइज वेरी क्विकली एंड मोर इन एन एफिशिएंट मैनर. नोट्स आप बना लो, उसको प्रिंट करा लेना. लेकिन अब द चॉइसेस और यू. डिजिटल मोड में बनाने का फ़ायदा क्या है कि आप कहीं भी किसी टॉपिक को बना सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, उसकी क्लिक करके सीधे उस नोट्स पे जा सकते हैं, राइट. यू कैन पुट पिक्चर्स, यू कैन ऐड ग्राफ्स. गूगल पे बहुत सारे आपको कई सारे इन्फोग्राफिक्स दिखेंगे, आप उनको ऐड कर सकते हो, राइट. बट हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान है. अब हाथ से कुछ लोग लिखते हैं, उनको लिख के जब वो नोट्स बनाते हैं तो उनको याद ज़्यादा होता है. सो दैट्स टोटली वॉट आई एम सेइंग, दैट्स योर कॉल. ओके, बट द पॉइंट इज़ आपको डेली के लिए इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन करना है. ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूँ. अब डेली करंट अफेयर्स का कोई भी नोट कर लो. मैं जैसे अब बिकॉज आई एम इन लीगल एज, आई जनरली सी पीपल डूइंग दिस पर्टिकुलर सोर्स. दिस इज अ फ्री सोर्स. यू गो ऑन द वेबसाइट, यू गो टू करंट अफेयर्स एंड यू पिक अप डेली करंट अफेयर्स. एंड ये रोज़ का एक पेज का पूरा नोट्स, जैसे 9 अगस्त का क्लिक किया, देखो यहाँ पर everything of that day is there, and this is a very good source especially for AILET. This is a very good source. Okay, इसका आप इसी का मंथली करंट अफेयर्स वर्जन आता है विच इज़ गुड फॉर रिविजन ऑफ दैट मंथ. सो डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स, ये दो सोर्स याद रख लेना. डेली का करंट अफेयर्स आप रोज़ करोगे, मंथली करंट अफेयर्स आपके बैकलॉग के लिए है. सो अब लेट्स कम बैक टू बैकलॉग. पहले ख़त्म करो एक मंथली करंट अफेयर्स, फिर ख़त्म करो एक मैगजीन, फिर ख़त्म करो GK फिएस्ता के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और फोर्थ जो सोर्स है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, किसी का भी मंथली राउंड अप या मैराथॉन्स देख लो. ठीक है, फॉर द मंथ्स यू हैव मिस्ड, 1 मैगजीन, 1 मंथली, दीज 1 लाइनर्स वाला थिंग. ठीक है, जैसे कुछ लोग GK टुडे प्लस क्लैट का कोई कुछ कर रहे होंगे, दोनों मिक्स करना ज़रूरी है, याद रखना. ओके, सो 1 मैगजीन, 1 मंथली वाला थिंग,
आप फिएस्ता के सारे टॉपिक्स कर जाओ, ठीक है, एंड आप चौथी चीज़ जो कर जाओ दैट इज़ आपका मंथली राउंड अप किसी भी कोचिंग का या मैराथन किसी भी कोचिंग का. आई थिंक वी ऑल्सो लीगल एज ऑल्सो हैज़ मंथली राउंड अप ऑन द यूट्यूब चैनल इट सेल्फ, सो यू कैन डू दैट विल बी फर्स्ट पार्ट. बैकलॉग आपको वैसे ख़त्म करना है, 1.5 घंटे 2 घंटे आप जो भी लगा लो, नोट्स बनते चलने चाहिए सबके. सो आई विल से कि बैकलॉग में एक टॉपिक उठाओ, पहले उसका सारा नोट्स बना जाओ. सो लेट्स से आई एम पिकिंग अप अ मंथली करंट अफेयर्स ऑफ सम इंस्टीट्यूट, मैं उसके सारे पहले नोट्स बना लूँगा पढ़ के. अब मैं बाकी जब सोर्सेज रिपीट करूँगा तो उसमें ऑलरेडी मेरे नोट्स पहले ही सोर्स से बन गए होंगे, समझ रहे हो. सो इट विल टेक लेस टाइम. सो दैट इज़ वन. करंट के लिए क्या करना है, एक्सप्लेन्ड उस दिन का पढ़ो, एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स उस दिन के पढ़ लो, ठीक है. उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स उठा लो, जैसे आज 13th है तो 12th का है तो 12th पढ़ लो, एक दिन पहले 2 दिन पहले से चला लो, कोई दिक्कत नहीं है. और उस दिन से न्यूज़पेपर से नोट्स निकाल लो, टॉपिक्स निकाल लो. उन टॉपिक्स को जैसे आप गूगल करके दृष्टि के वेबसाइट से और आर्टिकल्स एक्सप्लेन्ड से या कोई और वेबसाइट से या थोड़ा विकीपीडिया देख लिया. और ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट फ्रॉम यूजिंग विकीपीडिया. विकीपीडिया आपको बहुत सारे टॉपिक्स देता है, रिलेटेड टॉपिक्स, बहुत बहुत अच्छा सोर्स है टॉपिक्स के लिए. वो कंटेंट उसमें ऑब्वियसली एज यू नो कोई भी चेंज कर सकता है उसमें, तो यू नीड टू वेरीफाई फ्रॉम दैट गवर्नमेंट सोर्स और सम गुड सोर्स, बट टॉपिक्स के लिए बहुत अच्छा है वो. जैसे आप इजराइल और रशिया कॉन्फ्लिक्ट सर्च करोगे विकीपीडिया पे, आपको इजराइल रशिया के अंदर जितने भी सब सेक्शंस और जितने भी सब हेडिंग्स होंगी सब मिल जाएंगी. एंड दैट विल गिव यू आइडिया कि अच्छा इजराइल रशिया में क्या यूक्रेन रशिया में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. ओके, सो डेली करंट अफेयर्स कर लिया, एक्सप्लेन्ड आर्टिकल उस दिन का कर लिया आपने, न्यूज़पेपर उस दिन का पढ़ लिया, ठीक है. और फिर बैकलॉग के लिए रिवीजन के टाइम पे मंथली कर लोगे, उस मंथ का मैगजीन कर लोगे किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है. और आप मैराथन्स कर लोगे, गॉट इट. एंड दिस इज हाउ विल यू कवर जीके इन 2 सेगमेंट्स. एक और चीज़ जो आपको ऐड करनी है दैट इज़ क्विज़. रोज़ के थोड़े क्विज़ लगाना स्टार्ट करो. 2-3 वेबसाइट्स में आपको बता रहा हूँ, जैसे जीके टुडे पे आप जाओगे, जीके टुडे में तो आपको यहाँ सीधे करंट अफेयर्स क्विज़, आई डोंट नो व्हाट दैट प्रॉब्लम इज, यहाँ सीधे करंट अफेयर्स क्विज़ डेली मंथली आपको सब मिल जाएगा. ओके, सी दिस, ज़्यादा नहीं, 5-5 क्वेश्चन है पर दिन के. आप ऐसे ही इंडिया बिक्स पे जा सकते हो. इंडिया बिक्स में भी आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स एंड जीके में क्लिक करोगे करंट अफेयर्स पे, तो विल गेट करंट अफेयर्स बाय डेट. आप उस दिन के कर लो, ठीक है. आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे. देखो 12 क्वेश्चंस एक्चुअली, एंड यू कैन जस्ट गो बैक एंड जस्ट सॉल्व देम, ठीक है. आई एम नॉट अलाउइंग द मैथ्स. 10 क्वेश्चंस है तो 15-15 क्वेश्चन दिन के, 110 दिन है. 10 दिन छूट भी गए ना तो 1500 क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएंगे. एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, अ वेरी गुड सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर एलेट स्पेशली. ओके, आई होप इट्स क्लियर. जीके में क्या क्या करना है, लीगल में क्या क्या करना है. आरसी और सीआर के लिए 2-3 सोर्सेज मैं बता रहा हूँ. एक तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड एऑन, ठीक है. एऑन पे काफ़ी अच्छे 3000 वर्ड्स के आर्टिकल हैं एंड दे आर ऑल फ्री. सी दिस, कैन यू सी द लेंथ ऑफ दिस थिंग. दिस विल हेल्प योर आरसी एंड सीआर बहुत अच्छा. एक आर्टिकल्स रोज़ पढ़ो, ज़्यादा नहीं, एक आर्टिकल्स रोज़ पढ़ो, ठीक है. यू कैन ऐड न्यूयॉर्क टाइम्स ऑल्सो, न्यूयॉर्क टाइम्स ऐड कर लो, कुछ भी. न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी मिलेगी. दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट ऑफ इट इज़ फ्री. सी दिस, राइट. यू कैन ऐड द इकोनॉमिस्ट. वैरायटी तो लानी पड़ेगी बिकॉज सीआरआरसी में वैरायटी पैसेजेस आएंगे, ठीक है. द इकोनॉमिस्ट देख लो, सी दिस, है ना. तो डू वट एवर यू कैन. मैं और लिंक्स आपको भेज दूंगा, इनके लिंक्स मैं भेजूंगा जहाँ से आप पढ़ सकते हो. ये सीआरआरसी के लिए रीडिंग कर लिया आपने. और सीआरआरसी के सेक्शनल्स रोज़ एक देने हैं बिकॉज सीआरआरसी में थ्योरी नहीं होती उतनी. वहाँ होता क्या है, प्रैक्टिस और एनालिसिस. ओके, तो सीआरआरसी के एक सेक्शनल्स आपको रोज़ करने हैं, राइट. सेक्शनल्स प्लस रीडिंग इज द सोल्यूशन फॉर सीआरआरसी एवरी डे. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैथ्स आपको पहले तो थ्योरी स्टार्ट करो एक टॉपिक का पिक करके. यू ऑल नो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. आई एम नॉट हियर टू टेल यू ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स,
ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, परसेंटेजेस, SICI, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, राइट, यू नो दीज टॉपिक्स। इन्हीं से क्वेश्चंस आने हैं, इन्हीं से केसलेट्स बनने हैं। एक टॉपिक की थ्योरी करो और उसके तुरंत थ्योरी करने के बाद 15-20 क्वेश्चंस की आपके पास सेट होनी चाहिए, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये ऐसे आपको रोज़ समराइज कर रहा हूँ मैं वापस। SEO से एक आर्टिकल, एक जजमेंट रोज़, PRS से एक पेज मंथली पॉलिसी रिव्यू और PRS से एक बिल्स पार्लियामेंट रोज़, ठीक है। 1 घंटा बैकलॉग किया। बैकलॉग में क्या क्या किया आपने? पहले स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल GK फिएस्ता की लिस्ट, फिएस्ता 1 टू फिएस्ता 7, सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करो मल्टीपल सोर्सेज से, ठीक है। उसके बाद आप डेली मंथली करंट अफेयर्स उठा लो किसी मंथ का, ठीक है। जिस टाइम का आपने, जिस मंथ का आपने फिएस्ता कवर किया है, उसी मंथ का मंथली करंट अफेयर्स उठा लो। उसी मंथ का फिर एक मैगजीन उठा लो। ये तीनों ख़त्म करो, इनसे नोट्स बना लो और फिर उसी मंथ का मैराथन देख के ख़त्म कर डालो। वो पूरे मंथ के आपके नोट्स बन गए। ये हर मंथ के लिए करो। ये आपका बैकलॉग हो गया। रोज़ के बेसिस पे क्या करोगे? न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको। इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स उस दिन के पढ़ो, दैट्स 2। थर्ड, आपको डेली करंट अफेयर्स करना है, ठीक है। और फोर्थ, आपको क्विज करना है 10 से 15 क्वेश्चन रोज़ का। इंडिया बिक्स, आपको GK टुडे, मल्टीपल सोर्सेज, टेक्स्ट बुक इज़ अनदर सोर्स, ठीक है। अड्डा 24/7 इज़ अनदर सोर्स। तो करो इनको। ये हो गया आपका GK का करंट। तो वी टॉक्ड अबाउट लीगल, GK का बैकलॉग, GK का करंट। CRRC एक आर्टिकल, एऑन, न्यूयॉर्क टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट एक आर्टिकल, प्लस एक सेक्शनल्स RC और CR के विथ एनालिसिस। एंड द लास्ट इज मैथ्स। पहले एक टॉपिक उठाओ, उसका थ्योरी कर जाओ, उसके क्वेश्चंस के वर्जन्स प्रैक्टिस कर जाओ। कहाँ से करोगे? मल्टीपल वीडियोस यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब, मल्टीपल वीडियोस। यू जस्ट टाइप द टॉपिक, ठीक है, और आप फुल रिविजन ऐसा कुछ डाल दो, आपको वो पूरा थ्योरी विथ एग्जाम्पल्स, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। उस वीडियो को पूरा देखो, साथ में सॉल्व करो। जहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा जा रहा है पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। नहीं हो रहा, वीडियो देखो, आगे वो बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। एंड जस्ट मेक अ फॉर्मूला बुक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर वीक इन मैथ्स। मेक अ फॉर्मूला बुक जहाँ पर आपने हर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो लिख रखा है, और उस टॉपिक के फॉर्मूला सारे एक जगह नोट डाउन कर रखे हैं। मॉक के पहले, एग्जाम के पहले एक बार उसको रिवाइज कर लो, मैथ्स आपका बेटर होगा। ओके, गॉट इट। तो ये चीज़ें करनी है। अब देखो डेली बेसिस पे क्या करना है, ये आपको हमने बता दिया, ये आपको पता चल गया। अब वीकली बेसिस पे क्या करना है? 2 चीज़ें। वीक में एक दिन आप रखोगे असाइड, 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जहाँ पर आपने जितने भी नोट्स GK के बनाए हैं उनको पूरा रिवाइज करोगे। जो भी नोट्स आपने GK के बनाए हैं उनको पूरा रिवाइज करोगे, ठीक है। यू विल रिवाइज द इंटायर नोट्स यू हैव मेड, इंटायर नोट्स। सो इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे, नेक्स्ट वीक इट विल बी 6 डेज का नोट्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक 6 + 6 7, 13 डेज का नोट्स पूरा रिवाइज करना है 13 दिन। फिर अगले वीक इट विल बी 7 more days, 20 डेज का नोट्स। यू विल रिवाइज द इंटायर 20 डेज का नोट्स। वीक में एक बार पूरा रिविजन के लिए रखना है। सेकेंड थिंग, संडे तो मॉक आई एम टेकिंग फॉर ग्रांटेड, एवरी वन इज गिविंग। इफ यू आर नॉट गिविंग, ठीक है, डोंट बी फूलिश, स्टार्ट गिविंग मॉक्स। संडे तो देना ही है, आई एम टेकिंग दैट एज अ ग्रांटेड। नाउ इट्स टाइम वेर यू स्टार्ट गिविंग योर सेकेंड मॉक इफ यू आर नॉट ऑलरेडी गिविंग 2 मॉक्स। इफ यू हैव बिन गिविंग 2 मॉक्स फॉर अ वाइल, 1-1.5 महीना हो गया आपको 2-2 मॉक दिए हुए, तो तीसरा स्टार्ट कर दो। अच्छे मॉक्स, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कुछ मॉक्स देखे हैं, ठीक है, नॉट टू talk foul about anyone, I am not going to mention names, but I only love two institutes के मॉक, ठीक है। फर्स्ट इज लीगल एज, ठीक है, हमारे मॉक्स जो हैं लीगल एज के, दैट्स वन ऑफ द डिफ़िकल्ट मॉक्स। सो अगर कम आए तो बिल्कुल आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। दैट्स द टफेस्ट मॉक इन द मार्केट एंड द क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड। स्पेशली लीगल का तो मैंने हर मॉक देखा है। लीगल में दे हैव बीन आस्किंग अ लॉट ऑफ CLK, a lot of mixed topics. That's very good. If you are prepared for that kind of legal, कुछ भी आएगा संभाल लोगे, ठीक है। मैथ्स का ऑल्सो नो कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे मॉक्स में, तो अगर वो मैथ्स हैंडल कर रहे हो तो कोई भी मैथ्स हैंडल कर लोगे। एंड इसके अलावा आपको एक PYQs तो सबके ख़त्म हो जाने चाहिए, ठीक है।
2008 से लेकर 2008, डोंट से कि फॉर्मेट सर अलग था, ये अलग था. आई नो ऑल ऑफ दैट, आई हैव प्रिपेयर्ड. You all know I've given the exam in 2015, right? So I know the point is format change हो रहा है. क्वेश्चन की इनहेरेंट क्वालिटी, क्वेश्चन जो टॉपिक कवर कर रहा है वो रेलिवेंट है, या तो क्लैट में रेलिवेंट है या एलिट में रेलिवेंट है. सो यू माइट आर्ग्यू कि सर एआर तो अब आता ही नहीं है, पहले क्या क्लैट के पेपर में एआर होता था. बेटा वो एआर एलिट में काम आएगा, बना लो. दैट्स गुड क्वालिटी क्वेश्चंस. First, complete all the CLAT and ALET PYQs and you can insert LE mocks in between. You need more mocks. विदिज्ञा उठा लो, ये सारे फ्रीली अवेलेबल हैं, आपको पता है. टेलीग्राम के चैनल्स पे बहुत सारे ये मॉक्स ऐसे फ्रीली मिल जाते हैं. ठीक है, पहले इनके ख़त्म किए बिना कोई दूसरा तीसरा मॉक मत उठाना. आई एम टेलिंग यू. ओके, तो अगर एक कर रहे हो तो दो कर रहे हो, दो कर रहे हो तो 3 पे भी जा सकते हो. बट अगर नहीं कर रहे तो इट्स द टाइम यू स्टार्ट नाउ. सेक्शनल्स आप दे दो. ठीक है, जो स्कूल नहीं जाते हैं उनको यही जीके में 2 घंटे का टाइम 4 घंटे करना चाहिए आइडियली, है ना. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. ट्वीक्स आपको थोड़े थोड़े करने पड़ेंगे, है ना. तो वो अपने हिसाब से आप देख लो. जैसे कुछ लोग स्कूल जाएंगे तो वो रोज़ मॉक नहीं दे सकते, वो 3 मॉक्स 4 मॉक्स नहीं दे पाएंगे. तो दे विल फोकस मोर ऑन सेक्शनल्स वेयर व्हेन दे आर गोइंग टू स्कूल, and when they are not going to school then they will give their full length mocks. And people who are going to school and preparing, हाथ जोड़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको अब ध्यान स्कूल से हटा के क्लैट पे डालना पड़ेगा. nobody cares about your 12th percentages. nobody, डी यू को भी फ़र्क नहीं पड़ता, डी यू भी CUET से लेता है. ठीक है, मेरे खुद के मार्क्स बहुत कम आए हैं 12th में, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने बताया है. nobody literally cares. okay, you still got placed, I still got placed. ठीक है, I still got all the opportunities. Nobody cared for my 12th marks and nobody does. ठीक है, unless and until आप MBA करने का प्लान कर रहे हो फ्यूचर में. ठीक है, 12th के मार्क्स से कोई मैटर नहीं करता. और दूसरी अच्छी बात यह है कि 12th पूरा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. दिसंबर पूरा रहेगा आपके पास, जान पूरा रहेगा, वह पूरा रहेगा 3 महीने में. अगर आप अभी तक अच्छे से स्कूल के लिए थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, 3 महीने में बहुत आराम से 90+ मार सकते हो आप. ठीक है, तो उसको साइड पे करो. ठीक है, now people who are part of the focus group, this I want you all to follow as a rule, because जो मैं चीज़ ये बता रहा था कि people who are not serious I will have to take them out from the focus group. मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, आपको भी पता है. I have a full time job, I teach at Legal Edge, so I don't have a lot of time to waste with students who are not serious. Let me tell you this very frankly. So please मैं आपसे प्रूफ मांगूंगा. When you are reading legal, I have told you to take topics. When you are doing GK, I have told you to make notes. I want a daily update on what you are doing and I will track all of your daily updates. People who will not give updates before 12 AM for that day, जैसे मैंने आज, अगर मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ ये प्रैक्टिस, तो मैंने कल जो भी किया है वो 12 बजे से पहले मुझे एक मैसेज पे आप बस ड्रॉप कर दो उस फोकस ग्रुप के अंदर कि सर आई हैव डन ऑल ऑफ दिस थिंग. ये आपकी खुद की अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, ये बाकी लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ मुझे भी तसल्ली रहेगी कि अच्छा मेरे वर्ड्स जो है वो ऐसे वैक्यूम में नहीं जा रहे, यू आर एक्चुअली सीरियस एंड यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग. ओके, सो दिस इज़ वॉट आई हैव डिसाइडेड. इफ़ योर उस दिन का प्रोग्रेस इज़ नॉट इन द ग्रुप, आई विल हैव टू टेक यू आउट फ्रॉम द ग्रुप. ओके, सेकेंड थिंग, प्लीज़ अंडरस्टैंड, सबसे अच्छी चीज़, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक प्लानर मेंटेन करो. प्लानर क्या होता है? इट्स लाइक अ कैलेंडर बट विथ स्पेसेस टू राइट थिंग्स. ओके, पहले तो एक प्लानर हर वीक बनाना स्टार्ट करो, वीक स्टार्ट होने से पहले, कि उस वीक आपके टारगेट्स क्या क्या हैं और क्या करने वाले हो, और वो प्लानर आपके बिल्कुल टेबल के सामने होना चाहिए. दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना कि बर्नआउट नहीं करना खुद को प्रिपरेशन के बीच में. ठीक है, देर आर फेस्टिवल्स कमिंग, देर आर breaks coming. You have to, whenever you're feeling burnout, you have to take your foot off the pedal and you have to relax. कम टाइम है बट फिर भी 110 दिन काफ़ी होते हैं. 110 दिन इंसान बर्नआउट हो सकता है, तो प्लीज़ उस चीज़ का ख्याल रखना. ठीक है, जो भी डाउट्स हो आप पोस्ट कर सकते हो, आपको पता है. ठीक है, whenever I get the time I will answer and we will try to do these sessions more frequently. I will try to get a live session next time so that I can have a Q&A. ठीक है,
बट सबसे पहला काम सबको करना क्या है, आप शेड्यूल बनाओ। अगर आप ड्रॉपर हो, पूरा दिन है आपके पास, तो आप एक शेड्यूल बनाओ। अगर आपके दो रोल्स हैं, फॉर एग्जांपल यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट एंड यू गेट ऑफ डेज, तो स्कूल के दिन वाले शेड्यूल में आप 4-4.5 घंटा डालो। जिस दिन आप बंक कर रहे हो, पूरा दिन प्लान है आपके क्लैट के पढ़ने को लेकर, आपका 7.5 से 8 घंटे का शेड्यूल उस दिन का होना चाहिए। सेम गोज फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग अलॉन्ग साइड कॉलेज का जो टाइम है, उस दिन आपको कितना टाइम निकालना है उसको स्लॉट करो इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। ये जो मैंने सारे टारगेट्स बताए, ये आपको डेली अचीव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये ऐसे शेड्यूल्स बना लो, दूसरा प्लानर बना लो, और तीसरा एक लिस्ट बना लो कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें करने को बोली हैं, और इन तीनों चीज़ों को सामने पेस्ट कर दो, सामने रखो अपने टेबल के, ओके। एंड आई वॉन्ट एवरी वंस डेली ट्रैक ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग, ओके। एंड आई होप यू स्टार्ट राइट नाउ, ओके। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट थिंग, न्यूज़पेपर बिल्कुल मत स्किप करना। आप जो अभी तक कर रहे हैं न्यूज़पेपर स्किप, यू आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू योर प्रिपरेशन, बट और ज़्यादा डैमेज मत होने दो। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर देता है। न्यूज़पेपर आपके सिलेबस का 50% है। इट टेक्स केयर ऑफ योर CRRC, इट टेक्स केयर ऑफ योर GK, ऑब्वियसली इट टेक्स केयर ऑफ योर लीगल। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इतने वर्डिक्ट्स आते हैं न्यूज़पेपर में, वो आउट के एग्जाम में आ जाएंगे तो फिर लगेगा घर लेना चाहिए था यार, ओके। सो डू नॉट टेक न्यूज़पेपर लाइटली। ईदर पिक इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। जो कर रहे हो वो अच्छा है, जो कर पाए हुए 100 दिन 110 दिन वो आपके लिए अच्छा है, ये दोनों में से एक पिक करना, लेकिन ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई होप योर प्रिपरेशन किक स्टार्ट नाउ, बिकॉज अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब 110 दिन बचे हैं, बहुत कम समय है, लेकिन जान लगा देंगे, ठीक है। एंड वी विल गेट अ गुड रिजल्ट, राइट। डोंट फॉल्टर फ्रॉम हियर, okay. Thank you all.